Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you of standard 7 chapter number 4 heat. The topics that I am going to cover in this chapter are transfer of heat, the different modes of transfer of heat. Means we will be talking about what is conduction, what is convection and what is radiation. Transfer of heat. Students, when you keep water on a gas stove, it becomes hot. जब आप पानी गैस स्टोव पर रखते हो और उसको गर्म करते हो तो क्या होता है? It becomes hot, right? And if we take it off from the fire, फायर में से अगर निकाल देते हैं, नीचे रखेंगे थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है? It automatically gets cool. So why does it cool down? ये ठंडा क्यों हो जाता है पानी? The water becomes cool by transferring its heat to its surroundings. Heat always gets transferred from hotter object to the colder objects. This heat transfer continues till both the bodies they attain a same temperature. हमेशा जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स तक ही ट्रांसफ़र होता है. अलग अलग ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. वन विच इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन, second is convection and the third is the radiation. So these are the three different modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. What exactly is the conduction? कंडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम एक आयरन रॉड लेते हैं, उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं और वो फ्लेम चालू करते हैं, the end touching the flame starts heating. Slowly, this heat travels to another end and the other end it becomes hot too. So this process of transfer of heat from a hotter object to the colder end, it is called as conduction. ये समझते हैं हम एक एक्टिविटी द्वारा. So let us understand this through an activity. This is to prove that heat travels in metals via conduction. What we are going to do? We are going to take a rod. We are going to take an iron rod. We are going to fix 4 nails, 1, 2, 3 and 4. 4 iron nails on it with the help of a wax. Wax को गर्म करेंगे, फिर उसको रॉड पर डालेंगे और उसकी मदद से हम 4 nails को स्टिक करेंगे. Now we are going to place the rod with a stand so that it can stand straight. Now heat the free end of the rod with a candle. What do you observe? अब क्या देखते हो? What do you observe? Students, you will observe that the iron nail which is closest to the heated end of the rod, it falls as the wax melts. जब वैक्स मेल्ट होगा तब ये नेल जो है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाएगी. एंड आफ्टर सम टाइम द सेकेंड नेल विल फॉल, देन द थर्ड नेल विल फॉल एंड एट लास्ट द फोर्थ नेल विल fall off. So from this activity we can conclude that heat travels from one end to another through conduction. The transfer of heat by conduction, it takes place in all the 3 states of matter: in solids, in liquids and in the gases. But conduction, where is it fastest in? किस में वो सबसे फास्ट कंडक्शन होता है? So conduction is fastest in the solids. क्यों फास्ट होता है सॉलिड में? उसका भी एक रीज़न है. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास में होते हैं. इतने पास में होते हैं कि देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन इट. दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन. अपने ही पोजिशन पर वाइब्रेट होते हैं. जब हम ये मेटल को या सॉलिड को हीट करते हैं
तो ये वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत फास्ट हो जाते हैं, और ये जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही कोलाइड होते हैं, बहुत ही डैश होते हैं। एंड दिस नेबरिंग मॉलिक्यूल्स वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, वो भी फटाफट फटाफट बहुत ही वाइब्रेट होते हैं। एंड हेंस दे एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी। This increased kinetic energy, it leads to the rise in temperature, and this way heat travels from one end to another one. Now here I discussed about a word called as kinetic energy. तो ये kinetic energy होता क्या है? Kinetic energy is actually the energy which a body possesses, जो एक बॉडी में होता है। कब होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग इन मोशन, इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो देयर आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंडक्शन ऑफ द हीट। So which are the conditions necessary? Actually there are two conditions which are necessary for the conduction of the heat. The first one is that the two objects should be in contact. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो ही कंडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी सेम, एक का ज़्यादा और एक का कम होना चाहिए, तभी ये कंडक्शन प्रोसेस होता है। Now students, you are already familiar that substances which allow heat energy to flow through them, they are called as good conductors of heat. And you are also familiar that substances which do not allow heat energy to flow through them, they are called as poor conductors of heat, or they are also called as insulators. The other name of poor conductors or bad conductor, it is a insulator. Actually metals are good conductors of heat. जो भी सारे metals है, they are all good conductors of heat. Like iron is there, gold is there, silver is there, all these are good conductors of heat. Whereas if we talk about the poor conductors of heat or bad conductor insulators, then wool is there, cotton, plastic, glass, mica, these are all poor conductors of heat. Water and air, they are also bad conductors of heat. Now let us discuss about some of the practical appliances of the good conductors of heat. A good conductors of heat है वो कहाँ कहाँ पर हमको काम आते हैं। तो एक तो ये है कि हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स, और मेटल से क्यों बने हुए होते हैं? सो दैट द हीट कैन ईजिली गेट ट्रांसफर्ड टू द फूड। कॉइल्स जो रेफ्रिजरेटर्स के और एयर कंडीशंस के उनके होते हैं, वो कॉपर से बने हुए होते हैं टू कंडक्ट अवे हीट। जो हमारे मर्क्यूरी थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी यूज़ होता है वो एक लिक्विड मेटल है, और वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिकल अप्लायंसेस ऑफ द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट. Now let us discuss about some of the practical appliances of the poor conductors of heat. Poor conductors are those which do not allow the heat to pass through it. तो हीट कहाँ से पास नहीं होना चाहिए? कुकिंग यूटेंसिल्स जो हमारे होते हैं, वो उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज द पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्यों? क्योंकि वो हीट को पास नहीं करने देता, और इसीलिए जो भी गर्म, जितना भी गर्म है, मगर हम उसके यूटेंसिल्स को उसके हैंडल्स से पकड़ेंगे तो हमको गर्म भी नहीं लगेगा. इसीलिए जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, दे आर वार्म इन विंटर. क्यों? हमको वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो अब हमको ठंडी क्यों नहीं लगती? बिकॉज वुल इज एन इंसुलेटर और इट अलाउस बॉडीज हीट टू बी ट्रैप्ड इनसाइड. वो हमारे बॉडी के हीट को बाहर निकलने नहीं देता, और इसीलिए हमको ठंड नहीं लगती. जो हेयर और एनिमल्स के फर जो होते हैं, दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इसी की वजह से उनको ठंडी में ज़्यादा, विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती. इट कीप्स देम वार्म ड्यूरिंग विंटर बाय ट्रैपिंग हीट विद इन इट. जो एस्किमोस होते हैं, जो अपना इग्लू बनाते हैं, किससे बनाते हैं?
स्नो से बनाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, ये इग्लू है एस्किमोस का, किससे बना हुआ है? पूरा स्नो से बना हुआ है। स्नो से क्यों बनाते हैं वो? बिकॉज स्नो कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर। और हमने अभी अभी बात की कि एयर जो होता है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड इट कीप्स द इग्लू वार्म. Now about the second mode of transfer of heat, that is the convection. In case of heat transfer of conduction, you observe that there are no actual movements of the molecules. Conduction में molecules के movements नहीं होते हैं. But in case of convection, heat transfer takes place by actual movement of the molecules from hotter region to colder region. एक्चुअली हम उसमें देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल से वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में जा रहे हैं. तो ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट विच टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू ए कोल्डर रीजन, इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. और कन्वेक्शन इट रिक्वायर्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड due to intramolecular forces. So it can take place only in the liquids and in the gases. तो उसके लिए एक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर लेते हैं. क्या करते हैं हम? एक राउंड बॉटल फ्लास्क लिया है हमने, वो हमने आधा फिल किया है विथ वाटर एंड वी कीप इट विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंड. उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं. जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कौन से कलर का होता है? इट इज़ डार्क पिंक, या वी कैन से इट एज वायलेट इन कलर. जब हम ये पानी में डालते हैं, जो ठंडा पानी है उसमें हम डालते हैं, और बाद में अगर उसमें थोड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो लार्ज क्रिस्टल्स है वो सारे. बाद में अगर हम उसको हीट करते हैं तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है. सो व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेशन? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? स्टूडेंट्स, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन द क्रिस्टल इट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, सम ऑफ इट डिजॉल्व्स एंड गिव्स पिंक कलर टू द वाटर. इसलिए पिंक का हमारा वाटर का कलर थोड़ा बहुत हो जाता है. मगर जब हम ये पानी गर्म करना शुरू करते हैं तब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और जब ये मेल्ट होते देन इट विल बिकम लाइटर. गर्म होगा तो लाइट हो जाएगा, और लाइट हो जाएगा तो कहाँ पर जाएगा? लाइट कोई भी चीज़ होती है वो कहाँ पर जाएगी? इट ऑलवेज गोस ऑन टॉप, इट राइजेस अप. एंड द राइजिंग वाटर इज हॉट and its molecules it vibrate very fast. In this process they strike the molecules of cold water. ऊपर जाते समय जितने भी कोल्ड मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके साथ टकराएंगे, और वो अपनी एनर्जी वो कोल्ड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देंगे. And as a result these vibrations they are reduced and the rising water it becomes cold. In the meantime more hot water rises. हॉट वाटर तो होता ही रहेगा क्योंकि हमने नीचे कैंडल लगाया है, इसलिए हॉट वाटर इट कीप्स ऑन राइजिंग एंड इट पुशेस द कोल्ड वाटर टूवर्ड्स द साइड्स ऑफ द फ्लास्क, एंड फ्रॉम द साइड्स द कोल्ड वाटर इट कम्स डाउन, एंड दिस शोज दैट वाटर ट्रांसफर हीट्स by the movement of the molecules from the hotter region through a colder region, which is called as convection. So what are its uses? What are the uses of this convection currents? Convection currents ऐसा हमने अभी किया, वो कहाँ कहाँ पर हमारा काम आता है. तो हमारे जो वेंटिलेटर्स और जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं वो हमेशा ऊपर सीलिंग के पास होते हैं, सीलिंग ऑफ द रूम. क्यों सीलिंग के पास हम रखते हैं? क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक जो बाहर हम जो हवा निकालते हैं वो हमेशा गर्म होती है,
और गर्म हवा कैसे होती है? लाइट होती है, और लाइट हवा होगी वो कहाँ पर जाएगी? इट गोस अप एंड इट गोस आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स, एंड दिस कॉजेज अ ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम। और प्रेशर जब कम होगा तब बाहर की ठंडी फ्रेश हवा डोर्स और विंडोज़ के थ्रू सो हमारे घर के अंदर आती है। जो स्मोक्स और गैस होते हैं, दे बीइंग हॉट दे राइज अप थ्रू द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू द फर्नेस। जो हीटर्स और ब्लोवर्स होते हैं, दे हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करेंट्स। फायरमैन होते हैं, जब भी आग लगती है बिल्डिंग में तब वो हमेशा क्रॉल करके जाते हैं, खड़े खड़े नहीं जाते, क्रॉल करके जाते हैं। क्यों वो क्रॉल करके जाते हैं? बिकॉज वेयर द फायर इट हैज़ ब्रोकन आउट, द हॉट एयर एंड स्मोक, फायर होगा तो हॉट एयर भी होगी, स्मोक भी होगा, और हॉट एयर और स्मोक कहाँ पर जाएगा? इट राइजेस अप। और अगर ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे रहे, अगर वो खड़े खड़े जाएंगे तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो लोग क्रॉल करके जाते हैं। जो सी ब्रीज होता है और लैंड ब्रीज होता है, सो दिस इन कोस्टल एरियाज स्टूडेंट्स, द ब्रीज जनरली इट ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। और सी से लैंड तक जब एयर ब्लो होती है दिन में, उसको हम कहते हैं एज सी ब्रीज, और रात को जब ब्रीज ब्लो होती है लैंड से सी तक, उसको हम कहते हैं एज लैंड ब्रीज। सो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, दे आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट्स। स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर वाटर बीइंग अ बैड कंडक्टर, वाटर है वो बैड कंडक्टर है, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा गर्म होने के लिए। लैंड के कंपैरिजन में वो ज़्यादा टाइम लगाएगा गर्म होने के लिए, और लैंड के कंपैरिजन में वो ज़्यादा टाइम लगाएगा ठंडा होने के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं सी ब्रीज की, तो सी ब्रीज कब होता है? सी ब्रीज अकर्स इन द डे, ड्यूरिंग द डे टाइम। During the daytime, the land it heats up faster than water. अगर हीट जल्दी हो गया तो क्या होगा? तो उसके ऊपर की हवा होगी, द एयर विच इज अबव द लैंड, इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप एंड इट राइजेस अप। तो यहाँ की हवा होगी वो ऊपर जाएगी, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर। सो व्हेन इट क्रिएट्स द लो प्रेशर, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी, क्योंकि कोल्ड एयर है जो हमारा कोल्ड वाटर है, उसके अबाव जो होता है वो हमारी ठंडी हवा होती है, एंड ठंडी हवा होती है इट ऑलवेज हैज़ द हाई प्रेशर। तो यहाँ से ठंडी हवा लैंड पर आएगी, फिर ये लैंड की जो हवा है, लैंड है उसको गर्म करेगा, फिर ये लो प्रेशर होगा और ये ऊपर जाएगा, फिर सी की जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर वापस आएगी, फिर गर्म होके ऊपर जाएगी। तो ये प्रोसेस जो कंटिन्यू होगा फ्रॉम सी टू लैंड एंड टू लैंड टू सी, ये प्रोसेस को हम कहते हैं एज सी ब्रीज। ये होता है दिन में। रात को भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। क्या होता है रात को? तो ये ज़मीन जो है, जो लैंड होती है, इट लूजेस हीट मोर रैपिडली देन वाटर। और जो वाटर के ऊपर जो हवा होती है वो कैसी होती है? वो गर्म होती है। तो अभी ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। अभी यहाँ वाटर है वो हॉट है, वाटर हॉट है इसलिए इसके ऊपर जो हवा होगी वो हॉट हो जाएगी, हॉट होने की वजह से वो ऊपर जाएगी। अब जो लैंड है वहाँ की हवा कैसी होगी? ऑब्वियसली ठंडी होगी, और अगर ठंडी होगी तो ये ठंडी हवा कहाँ से कहाँ जाएगी? लैंड से सी तक जाएगी। फिर ये सी के ऊपर की हवा गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये ठंडी हवा वापस आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये प्रोसेस जो कंटिन्यू होगा रात को, इट इज़ कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। मॉनसून में जो कन्वेक्शन करंट होता है, जो बारिश होती है, वो भी इसी की वजह से होती है। जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़ने के लिए
वो ग्लाइड करते हैं. बर्ड्स दे यूज कन्वेक्शन करेंट्स टू राइज हाई एंड टू ग्लाइड एफर्टलेसली विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. वो अपने विंग्स को बिना फ्लैप किए वो उड़ सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ द कन्वेक्शन करेंट्स. अब बात करते हैं तीसरे मोड ऑफ हीट की, ट्रांसफर ऑफ हीट की. वो है हमारा रेडिएशन. स्टूडेंट्स, व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ बॉनफायर के आगे आप बैठते हो या रूम हीटर के सामने बैठते हो तो आपको गरम गरम महसूस होता है. जो हवा होती है जो आपके और हीट के सोर्स के बीच में होती है वो कैसी है? इट इज़ अ पुअर कंडक्टर. और पुअर कंडक्टर मतलब इट डज नॉट गेट हीटेड while transferring the heat from the fire to you. So this is to say that the heat is not transferred through conduction nor by convection. तो और कौन सा यूज होगा? So it is the third mode of transfer of heat, that is the radiation. तो ये रेडिएशन होता क्या है? Radiation, it is a process of transfer of heat which do not require material medium. उसको material medium की ज़रूरत नहीं होती है. अगर उसको material medium की ज़रूरत नहीं होती है then heat travels, radiation में heat travels in a straight line from the hot object from which radiates it. अब all the objects radiate or give out heat, but the amount of heat radiated from the objects, it depends on its temperature. Higher the temperature, higher will be the radiation. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रेडिएशन ज़्यादा होगा. So the heat which comes out of the hot objects, it is called as radiant heat. जैसे लाइट है, ये भी एक दूसरा फॉर्म है रेडिएंट एनर्जी का. और लाइट होता है वो स्ट्रेट में ही ट्रैवल करता है. इट ऑल्सो ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन एज हीट. सो लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन इट रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन. When it falls on objects like trees, the soils, the water bodies, human beings or anything or animals, some of it is absorbed whereas some is reflected. थोड़ा absorb होता है और थोड़ा reflect होता है. The extent of absorption and reflection of radiant heat, it depends upon two things. दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. जो एब्जॉर्प्शन है, जो रिफ्लेक्शन है रेडिएंट का, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. सरफेस कैसा है इस पर डिपेंड करता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. जो शाइनी, जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं दे रिफ्लेक्ट हीट बेटर. मगर जो डार्क और रफ सरफेसेस होते हैं दे एब्जॉर्ब हीट बेटर. वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसके अप्लायंसेस कौन से हैं? ये हम कहाँ कहाँ पर ये हीट रेडिएशन अप्लाई कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है जो वाइट और कलर्ड क्लोथ्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट मोस्ट. जो वाइट और लाइट कलर्ड के क्लोथ्स होते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन समर. समर में हम लाइट और वाइट कलर के क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं. क्यों? क्योंकि दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स हीट. रिफ्लेक्ट हो जाता है सन का हीट, इसीलिए वो जब हम पर गिरता है तब हमको इतनी गर्मी महसूस नहीं होती. ब्लैक एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट. ब्लैक और डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो हम विंटर में पहनते हैं. क्यों हम विंटर में पहनते हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स रेडिएंट हीट. वो एब्जॉर्ब करता है इसलिए हमको ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होती. जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं उनके जो बेस, उनका जो नीचे का पार्ट होता है वो ब्लैक कलर से कलर किया जाता है. दे आर पेंटेड ब्लैक. क्यों हम उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं? बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एंड कुक द फूड इन लेस टाइम.
जो हमारा इलेक्ट्रिकल रूम हीटर होता है, दे हैव पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस बिहाइंड द कॉइल। तो ये पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस क्यों होता है पीछे? बिकॉज दिस सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट that falls on it, and it gives effective heating to the room. So here we come to the end of the chapter. Here are some of the questions for which you are going to write down the answers in your books. So we end up over here. So students, have a great day.